So, dear participants, today our topic is report writing. Report writing is a very important topic as far as business writing is concerned. This is an activity which most of us do, whether we are into business writing in a business office or in any kind of office or whatever job we are doing. Report writing is a factor which we have to face sooner or later. Previously, we have discussed memorandum writing, and I shared with you that memorandum itself can act as a short report or a small report. For example, if you come late to your office and your boss asks from you in writing that tell me why you are late. So whatever the explanation you give in response to that question in writing raised by your boss, even he may ask you verbally as well. So whatever you write, the incident, what made you late, what happened, that again comes in the form of a report. So report writing is very much common. The moment we think about report writing, we always think about very thick kind of documents. Yes, there are two kinds of reports. There are short reports and then there are long reports. And then there are contents. Definitely longer reports have more contents, more headings, and shorter reports. Like in the case of a memorandum writing, you may have only one heading and in a paragraph or two, you can explain the situation. Likewise, if you have to submit your observation of a classroom, or if you conduct an online session, and then you have to inform your group members, you can write a few lines and again, you are basically reporting the happening or the occurrence of that event with your participants. So this is a brief intro about what are reports and why these are important. What are important terminologies which we use in report writing? First of all, there is letter of transmittal. What is letter of transmittal? Letter of transmittal, when you write a formal report and you send it either to the top of your organization or to some other organization, you place a letter on your report, and that letter is called letter of transmittal. It is just like a business letter. And last time we have gone through that business letter has a certain format. There is the writer's address, then the person to whom you are sending, that is also called inside address, and then there's a subject line, salutation, greeting, and then you write a few lines. So that's called a letter of transmittal. Letter of transmittal is part of a formal report. And then there is abstract. Abstract is written in longer reports and not in the smaller short reports. What is abstract? It is basically an overview of what is your report all about, what is the problem which you have explored, and what is the finding, and then what is the solution. So these are summarized basically in an abstract report, in a report. So the abstract is also written in research as well. Research, when you submit your research, even abstract one page or half page, or normally there's a card on which you type whatever is the main essence of your research. Then there's table of contents, whatever you are writing, the headings, these come under the title of table of content. Then there's a list of figures and tables. You also add on in longer reports, 100-page report, 200-page report. If you are adding any figures or any graphs and charts, so you add a list of figures and tables as well over there. Acknowledgements, while preparing a report, all those persons who helped you in completion of your report, like your typist, your colleagues, your subordinates, those who are junior to you, it is customary that you mention all of them so that they feel happy that they have worked with you and you have acknowledged
in writing their services and their contribution. Then there's the introduction of the report. In the introduction, you simply explain what is the problem and how you're going to solve that problem, what approaches you will be taking in that section. And then there are results and discussions. After that, there are references. You quote, references come at the end of your report. Before that, you come with conclusion and recommendations. Okay, so these are main headings of report. Now, we briefly explain whatever we have discussed in the previous slide. So first of all, letter of transmittal, it is an optional part of a report. But once you're writing a formal report, it becomes a compulsory part as well. If you're sending it within an organization, then it is an optional part. But if someone else, some third party has hired your services, then it becomes compulsory. So what do you include in the letter of transmittal? You include the main problem you have discussed in the report, and it is addressed to the person to whom you are submitting your report. And this letter of transmittal also shows that who are the authors of this report, what is the title of the report, and what is the purpose, why the report has been prepared, and why it is being submitted. So it is basically written on a separate sheet of paper, and it is not an integral part of the report, but written on a separate sheet of the paper. So this is what is all about letter of transmittal, the first part. Abstract, it briefly summarizes the report, and here you discuss, you do not discuss, basically you will very precisely point out, you mention what are the methods you have used in preparing that longer report, the method which helped you find out the causes and the results, like questionnaires or interviews, and what were the results of those methods, and then finally you conclude. Remember that you have to be very short, very to the point, relevant and concise in the abstract. Normally it is half or a maximum 1 paragraph summary of the report. And then there is a word limit as well. Maximum you can have 500 words. You can keep that limit in your mind while you are writing your abstract. So any question so far about the abstract and the letter of transmittal? Anything you would like to ask or inquire? Okay, fine. What happens in table of contents? Table of content, you all very well know that it is written, ये किसी भी किताब के शुरू में एक लिस्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। इसमें आप बताते हैं कि जी इंट्रोडक्शन है उसमें, उसके बाद डिस्कशन है, उसके बाद आपकी फाइंडिंग्स हैं, उसके बाद आपके रिकमेंडेशन हैं, और उसके बाद आपके रेफरेंसेस हैं। ये चीज़ें आप उसके अंदर लिखते हैं। इसके जो भी आपकी रिपोर्ट के मेजर पार्ट्स होते हैं, मेजर सेक्शंस होते हैं, मेजर चैप्टर्स की हेडिंग्स होती हैं, आप उनको वहाँ पे लिखते हैं, सीरियल नंबर और आगे आपकी वो सेक्शन और आगे पेज नंबर, क्योंकि आपकी जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं उसमें पेज नंबर होना ज़रूरी होता है, लेकिन शॉर्ट रिपोर्ट्स के अंदर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इसी तरीके से आप अगर आपने उसमें कोई फिगर्स ऐड की हुई हैं या कोई टेबल्स लगाए हुए हैं, चार्ट्स या बार ग्राफ्स वगैरह उसमें है, तो आप वो भी उसमें मेंशन करते हैं, ताकि जो रीडर ऑफ द रिपोर्ट है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जाए और जो चीज़ उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जो चीज़ वो ढूंढना चाह रहा है रिपोर्ट के अंदर, लाइक वो फाइंडिंग के ऊपर सबसे पहले जाना चाह रहा है, या सबसे पहले आपके रिकमेंडेशन को वो देखना चाह रहा है, आपके कंक्लूजन को देखना चाह रहा है, आपका मेथड देखना चाह रहा है, तो वो प्रिसाइजली एग्जैक्टली उसी पेज पे जाके तो उसको गो थ्रू करके और फिर वो बाकी कंप्लीट रिपोर्ट पढ़ सके। तो आप लिस्ट ऑफ फिगर्स जो भी आपने ड्राइंग ग्राफ्स वगैरह अपनी रिपोर्ट में लिखे हैं वो उसमें मेंशन करते हैं,
और ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में लिखे जाते हैं, ये उसी ऑर्डर में लिखे जाते हैं जिस ऑर्डर में आपने उनको रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया होता है। तो जो लिस्ट ऑफ टेबल है वो लिस्ट ऑफ फिगर्स ही की तरह होती है, और ये दोनों आपकी रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं। एक्नॉलेजमेंट पार्ट में जो ऑथर है वो एक्नॉलेज करता है एफर्ट्स, किसी ने उसको गाइड किया है, एडवाइस किया है, या उसके साथ मिलकर प्रोजेक्ट में काम किया है, इस सबको एक्चुअल रिपोर्ट शुरू होने से पहले, और दैट पोर्शन इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट। और देखें, अगर आप एक्नॉलेजमेंट का पार्ट छोड़ देते हैं तो ये आपके एंड के ऊपर ये बिलो डिग्निटी या आउट ऑफ एटिकेट्स रखता है कि आपने लोगों से काम लिया है और आपने उनकी एफर्ट्स को ड्यूली एक्नॉलेज नहीं किया है। इट बिकम्स अनएथिकल बिकॉज एवरीवन knows that whenever you are going to write a longer report, generally you need सर्विसेज ऑफ 1% और 2%। टाइपिस्ट की भी आपको जरूरत पड़ती है। अगर आपने बार ग्राफ्स बनाए तो हो सकता है आपने किसी मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट शख्स से आपने या स्टैटिस्टिशियन से आपने हेल्प वगैरह ली हो, तो उनका उसमें फिर मेंशन करना ज़रूरी होते हैं। तो ट्रेडिशनली क्या होता है आमतौर पर रिपोर्ट, लॉन्गर रिपोर्ट्स में, कि जो एडिटर होता है जिसने उसको एडिट किया होता है, या जो प्रूफ रीडर होता है, या कोई फैक्ट चेकर्स होता है जिसने आपकी रिपोर्ट के फैक्ट्स चेक किए हों, ठीक है, उनको आप उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते। एडिटर, प्रूफ रीडर और फैक्ट चेकर वगैरह को दे आर नॉट इंक्लूडेड अमंग दोज एक्नॉलेज। लेकिन जो आपका टाइपिस्ट होता है या जिससे आपके साथ कंट्रीब्यूट किया होता है, उसको लिखा होता है, उसका कंक्लूजन लिखा होता है, या आपके जो फाइंडिंग्स हैं उसमें आपकी रिसर्च में हेल्प की होती है, तो आप उनको मेंशन करते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में यू क्विकली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड। आप क्या लिख रहे हैं, आपका जो स्कोप है रिपोर्ट का वो क्या है, ठीक है, ताकि जो रीडर है उसको पता चल जाए कि जो मैं इतने लंबा डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करने वाला हूँ, ये मैं क्यों गो थ्रू कर रहा हूँ। जाहिर है कि नॉर्मली उसी ने रिपोर्ट को ऑर्डर किया होता है, और जब आप उसको लिख रहे होते हैं तो उसके जहन में भी होता है कि इसकी फाइंडिंग और कंक्लूजन वो ऑलरेडी भी उसके जहन में थे, वो मैच भी थोड़ा सा करता है कि इसकी डेप्थ वगैरह कितनी है, एनालिसिस कैसा है उसका। इंट्रोडक्शन में आप रिसर्च कंसेप्ट जो हैं जो आपने अप्लाई किए हैं रिजल्ट एक्सप्लेन करने के लिए, आप उनको भी ब्रीफली मेंशन करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। लाइक मैंने कहा कि क्वेश्चनर है, सर्वे है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, इंटरव्यूज हैं, आपने जूम के ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, आपने खुद जाके इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, तो जो भी आपने टूल्स उसके अंदर यूज़ किए हैं, अपने मेथड यूज़ किए हैं रिपोर्ट में, वो आप उस सेक्शन में मेंशन करते हैं। रिजल्ट और डिस्कशन पोर्शन जो है उसमें आप क्या करते हैं, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड इन टेबल और ग्राफ फॉर्मेट। रिपोर्ट ओनली द फाइनल रिजल्ट्स। हो सकते हैं आपको हर स्टेप के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन से लोग क्यों जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो एचआर ने आपको बुलाया और आप डिपार्टमेंटल हेड हैं, और आपको उसने कहा कि जी आप इसके ऊपर काम करें, और आपने देखा कि जी लोगों की सैलरीज कम है, या लोगों को डोमेस्टिक इश्यूज हैं, तो थोड़े थोड़े हर शख्स के जो जो लोग छोड़ के जा चुके हैं दायरे, फिर आप उनको कॉल करेंगे, आप उनसे इंटरव्यू बात करेंगे, भले जूम के ऊपर आप इंटरव्यू कर लें, या पे क्वेश्चनर बना के उनको यस नो या ओपन एंडेड क्वेश्चन भेजेंगे। तो जो हर स्टेप के ऊपर रिजल्ट आ रहे होते हैं आपने वो सारे उसके अंदर मेंशन करने हैं, बल्कि एंड में जो एनालिसिस करके जो मेजर ट्रेंड है आपने वो आपने उसमें मेंशन करना है। तो आप एक टेबल भी बना सकते हैं, अगर ईयर वाइज आप बना रहे हैं तो आप उसमें ग्राफ भी यूज़ कर सकती हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो रीडर होता है उसको एक नज़र में, ओवर अ क्विक ग्लांस, द पर्सन इज एबल टू फाइंड आउट कि व्हाट आर योर फाइंडिंग्स और उसके रिजल्ट्स वगैरह क्या हैं। अच्छा, इसी तरीके से जो रॉ डेटा होता है एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, जो हमने अभी बात की, कि जो आपको इनिशियल लेवल के ऊपर डेटा आ रहा होता है, आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं, और आप उसके ऊपर अपने नतीजे ड्रॉ कर रहे होते हैं, आप रिजल्ट्स बना रहे होते हैं, और जो कि आपकी रिपोर्ट का जो हेडिंग है जिसको आप इसके साथ रेलिवेंट नहीं होते, तो आप उसको चाहें तो ऐड कर सकते हैं रिपोर्ट में, लेकिन उसके लिए आपको जो रिपोर्ट के एंड में अपेंडाइसिस होते हैं, अपेंडिक्स आप लगाते हैं, आप वहाँ पे डाल दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वट एवर डेटा यू हैव गैदर्ड, दो इट इज नॉट integrally relevant to the report, but it may help the reader understand कि ये जो ट्रेंड्स आपने देखे हैं जॉब छोड़ के जाने वाले, इन ट्रेंड की रीजन क्या है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो आपका सेक्शन है इंट्रोडक्शन वाला, ये इसे कहते हैं इट इज द मीट ऑफ योर रिपोर्ट। जबकि जो बाकी के आपके सेक्शन है वो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो मीट ऑफ द रिपोर्ट है वो आपका इंट्रोडक्शन है।
अच्छा, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन में हम क्या देखते हैं कि कंक्लूड व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन। जब आप कंक्लूड करते हैं रिपोर्ट को तो उसमें एक नई कहानी ना स्टार्ट करते हैं, बल्कि जो कुछ आपने डिस्कशन सेक्शन के अंदर, बॉडी ऑफ द रिपोर्ट के अंदर आपने रिजल्ट वगैरह ड्रॉ किए हैं, अपने मेन पॉइंट्स रीडिंग आपने वहां से फाइंड आउट किए हैं, पूरी डिस्कशन के बाद कंक्लूजन में उन्हीं को आप शामिल करें और उन्हीं के मुताबिक आप रिकमेंडेशन दें। कोई ऐसी रिकमेंडेशन ना दें जिसके बारे में आपने रिपोर्ट में एज ए प्रॉब्लम उसको हाईलाइट ना किया हो। थिंक ऑफ द कंक्लूजन एज ए शॉर्ट रीस्टेटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बीइंग प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट। आप यूं समझ लें कि जो आपका कंक्लूजन है वो, आप जैसे आप कोई ऐसे लिखते हैं तो शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर आप उसको समरी बनाते हैं, यानी कि जो आप पीछे डिस्कस कर रहे होते हैं आपने उसी को समराइज शॉर्ट एंड स्मार्ट करके शेयर करने दो, और बेसिकली इसी कंक्लूजन से आपका एब्स्ट्रैक्ट भी निकलता है। वंस कंक्लूजन आर मेड, मेक सम रिकमेंडेशन एज टू द यूटिलिटीज ऑफ दोज कंक्लूजन्स। यानी कि जब आप अपनी कंक्लूजन बना लें तो फिर कंक्लूजन के ऊपर रिपोर्ट खाली ना छोड़ दें, बल्कि आप रिकमेंडेशन भी दें। 5 कंक्लूजन है तो 5 रिकमेंडेशन होनी चाहिए, 4 कंक्लूजन है तो 4 रिकमेंडेशन होनी चाहिए, यानी कि हर कंक्लूजन की एक रिकमेंडेशन आपको मेंशन करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके लेट से के 5 कंक्लूजन है और आपने 10 रिकमेंडेशन दे दी हैं, या 10 आपके कंक्लूजन और आपने 5 रिकमेंडेशन दे दी हैं। इट मीन्स कि आपने उसका प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया और आपने ज़बरदस्ती उसके अंदर से रिकमेंडेशंस ड्रॉ आउट की हैं। अच्छा, बोथ कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। जरूरी क्या वहां पे बुलेट पॉइंट्स लिखें। जनरली जो रिकमेंडेशन है या डिस्क्रिप्ट या आपकी जो कंक्लूजन है, ये डिस्क्रिप्टिव यानी कि एक पैराग्राफ, एक नैरेटिव पैराग्राफ की शक्ल में होते हैं, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप उनको बुलेट पॉइंट्स भी यूज कर सकती हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि रिकमेंडेशन आपकी भले बुलेट पॉइंट्स के अंदर हो, लेकिन कंक्लूजन जो है आपका वो एक नैरेटिव पैराग्राफ की शक्ल में होना चाहिए। रेफरेंसेस सेक्शन में क्या होगा, एनी आइडिया और एनी फार्मूला नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ऑथर मस्ट बी साइटेड। यानी कि वो, अगर आपने कोई एनालिसिस करने के लिए, लाइक आपने सोर्ट एनालिसिस किया है, आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और आपकी जो थ्रेट्स हैं और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपने उस फार्मूले को यूज किया है, तो आप उसमें रेफरेंस में जरूर लिखें कि ये मैंने सोर्ट एनालिसिस यूज किया है जो कि मैंने फलां बुक से लिया है और उसके ऑथर का नाम ये है। तो ये प्लेजरिज्म वगैरह इसमें नहीं होती और इसमें आपकी भी इज्जत बढ़ती है कि आपने एक्नॉलेज किया है, एथिकल ग्राउंड्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, फेल्यूर टू रेफरेंस प्रायर वर्क्स में बी इंटरप्रेटेड एज क्लेमिंग दो वर्क्स टू बी योर ओन। तो अभी तो जाहिर है गूगल है, लोग लाइन टाइप करते हैं और उनको पता चल जाता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो रिपोर्ट डालते हैं और वो पता चल जाता है कि इस रिपोर्ट में कहाँ कहाँ से आइडियाज लिए गए हैं। एंड दीज आर वेरी मच रेडिली अवेलेबल। ये बड़े हैंडी किस्म के सॉफ्टवेयर हैं। तो बजाय ये कि आप किसी दूसरे के आइडियाज को अपना क्लेम करें, आप उनको एक्नॉलेज कर दें, देन देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन योर रिपोर्ट। अच्छा, कुछ और रिपोर्ट राइटिंग के हवाले से पॉइंट्स क्या हैं कि जब आप रिपोर्ट लिखती हैं तो उसमें जो आपका फॉन्ट साइज है वो 12 का होना चाहिए। आप उसमें सिर्फ टाइप फेस, यानी कि जैसे टाइम्स रोमन है तो वो आप लिख सकती हैं। आप एरियल, नॉट एरियल नैरो बट एरियल का फॉन्ट वो आप उसमें यूज़ कर सकती हैं। तो जनरली टाइम्स न्यू रोमन और एरियल, ये दो फॉन्ट रिपोर्ट राइटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, और जब आपकी बॉडी होती है तो उसमें 12 पॉइंट्स को आप उसमें रखते हैं। ब्लैक टेक्स्ट एंड ब्लैक और ग्रे स्केल फिगर्स आर एडुकेट फॉर मोस्ट टेक्निकल रिपोर्ट्स। अगर आप एनालिसिस और कुछ ऐसी मशीनरी के बारे में रिपोर्ट्स दे रही हैं तो जनरली आप उसमें ब्लैक टेक्स्ट, और नॉर्मली भी हम ब्लैक टेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो फिगर्स वगैरह को आप ग्रे स्केल के अंदर मेंशन करें ताकि जब उसका प्रिंट निकले तो वो रीडेबल हो। जैसा कि हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस राइटिंग में गो थ्रू कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आर नॉट यूज्ड इन फॉर्मल राइटिंग, ठीक है। और जो आप मार्जिन छोड़ती हैं वो 1 इंच ऑन ऑल साइड इज स्टैंडर्ड फॉर मार्जिन इन अ लूज लीफ रिपोर्ट। यूज 1.25 टू 1.5 इंच लेफ्ट मार्जिन फॉर अ बाउंडेड रिपोर्ट। बाउंडेड रिपोर्ट का मतलब ये कि आप उसको बाइंड करवा के दे रही हैं, जब आप बाइंडिंग करती हैं तो पेज के कॉर्नर उसमें आ जाते हैं। तो अगर आपने ये मार्जिन छोड़ा होगा तो रिपोर्ट रीडेबल होगी, अगर आपने ये मार्जिन नहीं छोड़ा होगा तो वो चीज़ उसके अंदर जो आपकी बाइंडिंग है उसमें छुप जाएगी।
अच्छा, हमेशा याद रखें कि जो फॉर्मल रिपोर्ट है वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है, नॉट फर्स्ट पर्सन, नॉट सेकंड पर्सन, बट थर्ड पर्सन, यानी कि ऑब्जेक्टिव वे के अंदर आप उसको लिखते हैं। आप उसमें अपनी जाती चीज़ों को ऑब्जेक्टिव तरीके से प्रेजेंट करते हैं, पैसे वाइज जैसे आप कह सकती हैं। अच्छा, समरी क्या होता है? इसमें हम एक बार समराइज करते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया कि वाई रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट। तो रिपोर्ट्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे गिव इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। आपकी जो रिपोर्ट होती है इसके ऊपर लोगों को डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। रिपोर्ट इज जनरली रिटन इन रिस्पॉन्स टू सम डिजायर, रिक्वायरमेंट और नीड, यानी कि कोई आपको बताता है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, फिर आप उसके जवाब में रिपोर्ट लिखती हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? कुछ रूटीन रिपोर्ट्स होती हैं जो कि आप मेमोरेंडम की शक्ल में भेजती हैं, डेली रिपोर्ट्स हैं, वीकली हैं, मंथली हैं। कुछ एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं जब आप ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाती हैं, किसी कंपनी वगैरह में जॉब करती है, तो वहाँ पे इस किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आप एक स्कूल सेटअप में काम कर रही हैं तो वहाँ पे आपकी डेली जैसे क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स होती है, वो जा सकती हैं। वीकली रिपोर्ट्स आप अगर हेड हैं तो अपने टीचर्स के वीकली रिपोर्ट भी आगे स्कूल मैनेजमेंट को रेफर करती हैं, भेजती हैं आप उनको, तो इन्हें मेंटेनेंस रिपोर्ट भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ टास्क रिपोर्ट्स होती हैं। टास्क रिपोर्ट होती है कि आपको एक टास्क मिला, आपने इसको कैसे परफॉर्म किया, लाइक आपने अपने अंडर जो टीचर्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे बोर्ड क्लासेस में, तो आप जो कुछ भी करेंगी तो वो टास्क रिपोर्ट कहलाएंगे। उस मैयर को आप बताएंगी और साथ में रिजल्ट्स वगैरह शो करेंगी। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स होती हैं, इंटरप्रेटिव रिपोर्ट्स होती हैं और एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं। ये भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। इसी के स्पेशल असाइनमेंट्स होती हैं टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे भी हमने बात किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, एक स्पेशल असाइनमेंट, इट इज नॉट अ रूटीन वर्किंग। ठीक है, ये रूटीन से हट के चीज़ है, आपने उसको फाइंड आउट करना है। रिपोर्ट की क्वालिटीज क्या होती हैं? एक्यूरेट होनी चाहिए, आपके फैक्ट्स वगैरह चेक होने चाहिए, रिलायबल हो, ऑब्जेक्टिव हो। इसमें जो रिजल्ट ड्रॉ किए हैं उसके बारे में आपके एक ऑब्जेक्टिव, आपने ये टूल इस्तेमाल किए हैं, सर्वे किया है, आपने फेस टू फेस इंटरव्यूज किए हैं, आपने क्वेश्चन आयर उनको भेजे हैं, उस बेसिस के ऊपर जो डाटा आपके पास आया है उससे आपने अपने आप को ऑब्जेक्टिव साबित करना है कि आपका जाती मफाद उसमें नहीं है, जो आप रिकमेंडेशन दे रही हैं, जो आपने कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, जो आपका रिपोर्ट का स्कोप है आपने उसके मुताबिक रहना है। आइडेंटिफाई रेफरेंसेस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो जो भी आपने रेफरेंसेस वगैरह यूज किए हैं अपनी उस रिपोर्ट के अंदर, वो फैक्ट्स बेस्ड होने चाहिए, यानी कि क्यों आपने क्वेश्चनियर का इस्तेमाल किया, आपने सर्वे का इस्तेमाल क्यों किया, आपने बाकी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों किया, आपने सोट एनालिसिस का इस्तेमाल क्यों किया। तो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, ये एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर शामिल होता है। प्रोवाइड एडुकेट डॉक्यूमेंटेशन, जो जो भी चीज़ें हैं आपने क्वेश्चनियर बनाया था वो उसको रिपोर्ट के एंड में लगा दें अपेंडाइसिस के अंदर। आपने फोटोग्राफ्स वगैरह को एडिशनल लिए हैं, नॉट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, लेकिन उसको हेल्प करते हैं, आप वो उसके अंदर ऐड ऑन कर दें। आपने किसी जगह की मैपिंग की हुई है तो आप वो उसको ऐड कर दें एंड ऑफ द रिपोर्ट में। यूज एनालॉजीज, एनालॉजीज क्या होती है? कंपैरिजन टू एक्सप्लेन। तो ये एक बड़ा कॉमन सा रूल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कि जब भी आपने चीज़ों को ज़्यादा स्पेसिफाई करना है, जैसे हम नहीं कहते एज कोल्ड एज कुकम्बर, तो नॉर्मली बिजनेस राइटिंग के अंदर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन अवॉइड किए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे ज़रूरी है तो वहाँ पे आप एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। ये पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट हम जो रिव्यू कर रहे हैं तो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया कि टाइटल पेज क्या है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन क्या होता है कि आपके बॉस ने आपको रिटर्न में भेजा कि आप ये रिपोर्ट तैयार करें, वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होगा, तो वो भी आप रिपोर्ट के शुरू में लगा सकती हैं, रिपोर्ट के एंड में लगाएंगे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। और रिपोर्ट के जो इंट्रो है उसमें आप मेंशन करेंगे कि अंडर दिस अथॉरिटी ऑफ दिस लेटर आई एम कंपाइलिंग दिस रिपोर्ट। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल बता चुके हैं, रिपोर्ट के ऊपर लगता है, लॉन्गर रिपोर्ट में लगता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है, टेबल ऑफ इलस्ट्रेशन फिगर्स वगैरह है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, समरी एग्जेक्टिव समरी क्या है जब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट यानी जो मेन डिस्कशन आपकी है आप उसको डिस्कस करते हैं वहां पर। तो एग्जेक्टिव समरी आप रिपोर्ट की कैसे लिखती हैं? एन एग्जेक्टिव समरी शुड समराइज द की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट। इसमें पूरी रिपोर्ट नहीं लिखनी होती आपने, बल्कि जो मेन पॉइंट्स हैं आपने उनको मेंशन करना होता है। इट शुड बेसिकली रीस्टेट द पर्पस ऑफ द रिपोर्ट व्हाई यू आर राइटिंग। जो आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मिला है, जो आपको स्कोप ऑफ द रिपोर्ट मिला है, वो आपने उसके अंदर मेंशन करना है, और इसमें आपने डिस्क्राइब करने हैं कोई रिजल्ट्स वगैरह जो भी आपके हैं। तो ये समरी मैंने कहा कि आप एंड में लिखते हैं, और इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट भी आपका समरी ही के
बेस के ऊपर आप तैयार करती हैं। तो here is the end of this topic for today, report writing, and now you all are open for any questions. कोई सवाल अगर आपके पास है तो आप पूछें। Okay, if there is no question, then we come to the end of today's session. और इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो है प्रपोजल राइटिंग। वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इट विल टेक 2 क्लासेस। और एक हम उसमें टॉपिक जो एक पार्टिसिपेंट ने कहा था, हाउ टू राइट एन ई बुक, तो ई बुक राइटिंग के ऊपर एक टॉपिक है, वो हमारी इन्हीं क्लासेस के अंदर कवर हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक था आपके इस कोर्स का, और इसके बाद लास्ट टॉपिक हम प्रपोजल राइटिंग उसको डिस्कस करेंगे। और इस दौरान अगर आप भी कोई चीज़ किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहती हैं, क्योंकि 16 क्लासेस का ये हमारा कोर्स है, जो कि ऑलमोस्ट 13 और 14 क्लासेस में एंड हो जाएगा, तो स्टिल हैव 1 और 2 क्लासेस एक्स्ट्रा फॉर डिस्कशन ऑन एनी टॉपिक, और यू वांट टू शेयर एनी प्रेजेंटेशन या कोई भी चीज़ आप शेयर करना चाहती हैं, तो आप ग्रुप के अंदर या इनबॉक्स मुझे लिख सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, and if no question is coming to your mind at the moment, then you can inbox me, and you can write in the group business writing course, and then we can discuss that. So take care.